Hello friends, this is Viraj again and I hope everyone is studying well. We are doing a series of lectures जो आपके रिवीजन में हेल्प करेंगी उन लोगों के लिए, खास करके उन लोगों के लिए हुआ राइटिंग द सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2020 ऑन 4 अक्टूबर. एग्ज़ाम 4 अक्टूबर को ही होगा, एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होने वाला है. लेट मी टेल यू डैट किसी के भी बहकावे में मत आना. तो इस इन दिस पर्टिकुलर सीरीज ऑफ रिवीजन लेक्चर्स हम लोग मेडिकल इंडिया को देख रहे थे और हम लोगों का जो पहला lecture tha that has been done with, you must have watched it. In that particular lectures we looked into the dynasties of Palas, Gujjar Pratiharas and Rashtrakutas. Now we will look into the most important empire of South India, and in the history of South India ये सबसे important empire था, and the name of that empire is Chola Empire. Chola Empire was established by a person called as Vijayalaya Chola. Vijayalaya Chola was a feudal lord under the Pallavas. उन्होंने तंजौर कैप्चर किया इन 850 AD. 850 AD जो है ना, अभी AD नहीं यूज़ करते, दे यूज़ अनदर नोमेनक्लेचर एंड दैट इज़ CE, दैट इज़ कॉमन एरा. ठीक है. इन 9th century Cholas had defeated both Pallavas and Pandyas and brought almost all of the present Tamil Nadu under their control. But Rashtrakutas kept them under control. We see the rapid rise of Cholas after the decline of Rashtrakutas. दो important king है चोला डायनेस्टी के, राजराजा चोला एंड राजेंद्र वन. ठीक है, राजराजा चोला एंड राजेंद्र वन. राजराजा डिस्ट्रॉयड द चेरा नेवी इन त्रिवेंद्रम एंड अटैक क्यूलोन. ठीक है, उसके बाद ही ऑल्सो कॉन्कर्ड, उसके बाद राजराजा चोला ऑल्सो कॉन्कर्ड मदुराई एंड कैप्चर्ड द पांड्यन किंगडम. तो पांड्यन किंगडम का कैपिटल मदुराई था, उसको भी उन्होंने कैप्चर कर लिया. ही अटैक्ड श्रीलंका एंड कैप्चर्ड द नदर्न पार्ट ऑफ द आइलैंड. ही ऑल्सो brought under control almost the whole of Coromandel coast and Malabar coast. almost नहीं, पूरा Coromandel coast और पूरा मलबार कोस्ट उन्होंने अपने अंडर लाया, जिससे कि it was easy for him to control the trade with South East Asia. He also captured Maldives. उसके बाद राजेंद्र वन आए. राजेंद्र वन was the heir apparent of Rajaraja, and during the time of Rajaraja he was given some important tasks that made him an experienced king before he actually sat on throne. ठीक है, तो थ्रोन पे बैठने से पहले उनको एडमिनिस्ट्रेशन का काफ़ी एक्सपीरियंस आ चुका था. ही ब्रॉट चेरा किंगडम एंड पांड्या किंगडम completely under his control. He completely conquered Sri Lanka and also imprisoned the king and queen of Sri Lanka. Also took away their loyal insignia. To mark this victory, इन्होंने बहुत सारे to mark various victories, what the Chola kings did was they erected Shiva and Vishnu temple. Bridreshwara temple in Tanjore. Bridreshwara temple in Tanjore is one of these examples. Inscriptions are written on the wall of the temple giving historical narratives of this particular kings. ठीक है, this particular kings and their victories in war. राजेंद्र वन जो है, इन्होंने कलिंगा को क्रॉस किया. कलिंगा इज प्रेजेंट डे उड़ीसा. ही क्रॉस्ड कलिंगा एंड कैप्चर्ड बंगाल. In this particular task, he took the reverse route that was taken by समुद्रगुप्ता नॉर्थ से साउथ आए थे. राजेंद्र चोला जो है साउथ से नॉर्थ चले गए. During this particular task of his, he crossed Ganga river and hence he took the title of Gangaikonda Chola. He also built a new capital on the mouth of river Kaveri to mark his victory, and the name of the new capital was Gangaikonda Cholapuram. Cholas had good relations with the Shailendra dynasty. Shailendra dynasty जो है वो श्री विजय एम्पायर रूल कर रहा था साउथ ईस्ट एशिया में, and the areas under this particular empire were Malaya, Sumatra, Java and the neighboring islands, मतलब इंडोनेशिया. ठीक है, मलया, सुमत्रा एंड इंडोनेशिया were under the hold of श्री विजया एम्पायर, जिसको रूल कर रहे थे शैलेंद्र डायनेस्टी. ऑलराइट, शैलेंद्रस were followers of Buddhism. And they had built a monastery at Nagapattinam. And because they had built a monastery at Nagapattinam, they requested Rajendra I to endow the monastery with some villages, जिससे monastery का अपकेप बना रहे. ठीक है, बट चोलास, ये जो अच्छा रिलेशन था चोलास और शैलेंद्र डायनेस्टी में,
it started getting into trouble when Cholas felt कि the trade with China could be done more conveniently if some areas of Shailendra dynasty जो उस trade route के बीच में आते हैं they are captured. So what Cholas did, they attacked some areas of Shailendra dynasty and captured Kadaram or Kedah and some places on Malaya Peninsular and Sumatra Islands. ठीक है, कुछ जगहों पे उन्होंने कैप्चर भी कर लिया. द नेवी ऑफ चोलास ड्यूरिंग दिस टाइम वाज सो पावरफुल दैट होल बे ऑफ बंगाल वाज कॉल्ड चोला लेक. चोलास एंड चाइनीज जो है दे हैड गुड ट्रेडिंग रिलेशंस. दे आल्सो एक्सचेंज एम्बसीज विद ईच अदर. चोलास fought extensively with the Chalukyas of Kalyani for the control of Rayalaseema region, Tungabhadra Dock and northwest Karnataka. तो इन 3 रीजन्स के लिए कल चालुक्यास के साथ उन्होंने फाइट किया. Neither won, and in this particular wars ना both of the kingdoms got destroyed. Chola established military colonies in the regions captured by them, like they had done in अनुराधापुरम. अनुराधापुरम है ना, वो श्रीलंका का उस वक्त का कैपिटल था. तो वहाँ पे मिलिट्री कॉलोनीज उन्होंने जैसे दूसरे कैप्चर्ड एरियाज में खोला था, वैसे ही अनुराधापुरम में भी उन्होंने मिलिट्री कॉलोनीज को खोला था. दे एनकरेज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इवन इन द कैप्चर्ड टेरिटरी. तो इट वॉज नॉट ओनली इन देयर कोर टेरिटरी, ऑल्सो इन कैप्चर्ड टेरिटरी दे एनकरेज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. नॉट ओनली दैट, अगर हम लोग उनके एडमिनिस्ट्रेशन को देखें तो king was the most important person. He had a council of ministers to advise him. He went on tours to oversee the administration. The Chola army had elephants, infantry and cavalry. These were the 3 limbs of Chola army. Cholas also had a strong navy, जैसे कि हमने देखा है श्रीलंका उन्होंने कैप्चर किया था. ठीक है, इन्फेंट्रीज जो है वो स्पीयर यूज़ करते थे. ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन चलो फिर भी समझ लो. मार्को पोलो जो है उन्होंने चोला किंगडम के बारे में लिखा है. एंड ही राइट्स कि दे हैड अ स्ट्रॉन्ग नेवी. मार्को पोलो इटालियन ट्रैवलर थे जो इंडिया घूमने आए थे. विद रिस्पेक्ट टू देयर एडमिनिस्ट्रेशन, अगर हम लोग उनका ओवरऑल ऊपर से एडमिनिस्ट्रेशन देखें, मैक्रो लेवल पे अगर एडमिनिस्ट्रेशन देखें, तो चोला एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे बेसिक यूनिट था नाडू वॉज अ ग्रुप ऑफ विलेजेस. ठीक है, ग्रुप ऑफ विलेजेस. एंड नाडू जो था उसके ऊपर हुआ करता था वलानाडूस. ठीक है, वलानाडूस क्या था? वलानाडूस वॉज व्हेन फ्यू नाडूस केम टुगेदर. ठीक है, तो नाडूस क्या थे? नाडूस वेर ग्रुप ऑफ विलेजेस. व्हेन ग्रुप ऑफ नाडूस केम टुगेदर इट वॉज वलानाडूस. वडानाडूस मिल के बनता था मंडलम्स क्या थे? मंडलम्स वर बेसिकली प्रोविंसेस. तो देयर वर 4 प्रोविंसेस इन द चोला रूल. ठीक है, ऑफिशियल पेड बाय रेवेन्यू बेरिंग लैंड. ओके, वो छोड़ दो. नेक्स्ट जो चीज़ था वो वॉज विद रिस्पेक्ट टू कल्टिवेशन इन द चोला लैंड. कल्टिवेशन इन द चोला लैंड वॉज increased by providing irrigation facilities, then converting hill and tribal people into agriculturists and granting brahmanas and temples land. तो ब्राह्मणास को और टेम्पल्स को जब लैंड दिया जाता था तो व्हाट दे विल डू, दे विल कट डाउन द फॉरेस्ट एंड स्टार्ट ए कल्टिवेशन. जो कल्टिवेशन जो है ओवरऑल चोला किंगडम के लिए फ़ायदे का हुआ करता था. चोलास पेड स्पेशल एम्फोसिस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर. दे डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसकी वजह से ट्रेड को बहुत ही प्रमोशन मिला. दे ऑल्सो पेड अटेंशन टू इरीगेशन एंड यूज्ड कावेरी एंड अदर रिवर्स फॉर द सेम. दे ऑल्सो बिल्ड टैंक्स. तो टैंक इरीगेशन आज भी साउथ इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है. ठीक है, द फिजियोग्राफी ऑफ साउथ इंडिया इज सच कि वहाँ पे नेचुरल टैंक्स भी बन जाते हैं. ठीक है, नेचुरल टैंक्स भी बन जाते हैं. आगे दे सर्वेड लैंड इलॉबरेटली विच हेल्प देम इन फिक्सिंग द लैंड रेवेन्यू. तो चोलास ने लैंड सर्वे का काफ़ी अच्छे से लैंड सर्वे किया. अदर देन द अदर सोर्स ऑफ इनकम, लैंड सर्वे करना इंपॉर्टेंट भी था क्योंकि उसी से उनको लैंड रेवेन्यू मिलने वाला था. अदर सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द चोलास वेर टोल टैक्सेस ऑन प्रोफेशन एंड प्लुंडरिंग द नेबरिंग किंगडम्स.
दे बिल्ड मैग्निफिसेंट टेम्पल्स एंड टाउन्स, ठीक है, मैग्निफिसेंट टेम्पल्स, टाउन्स एंड मॉन्यूमेंट्स। आगे आते हैं विलेज असेंबलीज की तरफ आते हैं, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ आते हैं और विलेज असेंबलीज की तरफ आते हैं। तो 2 टाइप की असेंबलीज के बारे में डिस्क्रिप्शन मिलता है हमें। फर्स्ट आर ऊर एंड सेकेंड टाइप ऑफ असेंबली, सेकेंड असेंबली इज सभा और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज महासभा। ऊर जो है ना वो किसी भी विलेज की जनरल असेंबली हुआ करती थी। व्हाट वाज महासभा? महासभा was it was gathering of educated adults with some minimum property, ठीक है, it was the gathering of educated adults with some minimum property in villages that were called as agraharamas, ठीक है, in the villages that were called as agraharamas। अब ये agraharamas क्या थे? these were revenue free villages that were granted to the Brahmins। this particular sabha or mahasabha enjoyed autonomy and it was managed by executive committee consisting of men owning property। it was managed by an executive committee जैसे मैंने बोला, एंड एग्जीक्यूटिव कमेटी में कुछ लोग होते थे जिनके पास मिनिमम लेवल का प्रॉपर्टी होना जरूरी था। दे वेर आइदर इलेक्टेड थ्रू लॉटरी सिस्टम और रोटेशन। काम क्या था उनका? असेसमेंट एंड कनेक्शन ऑफ रेवेन्यू, मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, looked into giving justice to the people of the village। in this particular executive committee now there was also special in this particular executive committees, various executive committees, there was also a committee called as tank committee का काम था, it looked after distribution of water to the fields। महासभा जो था it will also look into distribution of new land and it will also exercise ownership land over it। तो अगर कोई नया जगह मिलता है उस पर्टिकुलर गांव को गवर्नमेंट की तरफ से, चोला किंगडम की तरफ से, तो वो पर्टिकुलर लैंड किसे देना है या फिर विलेज एडमिनिस्ट्रेशन के पास ही रखना है, दैट वाज डिसाइडेड बाय दिस पर्टिकुलर एग्जीक्यूटिव कमेटी। इट कुड रेज लोन फॉर विलेजेस एंड लेवी टैक्सेस। तो वो हक भी उसको था कि विलेज डेवलपमेंट के लिए अगर लोन लेना पड़े तो वो ले सकते थे। जब फ्यूडलिज्म की ग्रोथ हुई चोला किंगडम में, तो विद दैट वी सी द डिक्लाइन ऑफ ऑटोनॉमी ऑफ दिस पर्टिकुलर एरियाज। कल्चरल लाइफ देखते हैं चोलास की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चोलास ने बहुत एलोबरेट टेम्पल्स बनाए विद द स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर विच वॉज कॉल्ड एज द्रविड़ा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। अब मेन फीचर क्या था द्रविड़ा स्टाइल का? मेन फीचर था कि बिल्डिंग मैनी स्टोरेज ओवर द गर्भगृह। तो गर्भगृह के ऊपर मल्टीपुलर फ्लोर्स बनाना है। एंड व्हाट इज गर्भगृह? द इनर मोस्ट चेम्बर वेयर द चीफ डीटी इज प्लेस्ड, वेयर द चीफ डीटी रिसाइड्स, ठीक है, दैट इज गर्भगृह। नंबर ऑफ स्टोरेजेस वेरिड एंड द स्टाइल वॉज कॉल्ड एज विमना। तो कितना फ्लोर्स बनेगा गर्भगृह के ऊपर, दैट वेरिड, एंड दैट पर्टिकुलर स्टाइल वॉज कॉल्ड एज विमाना। ऑलराइट, अदर देन दैट एक मंडप बांधा जाता था। इट वॉज अ पिलर्ड हॉल विथ एलोबरेट केविंग्स, इट वॉज अ पिलर्ड वॉल विथ एलोबरेट केविंग्स एंड फ्लैट रूफ इन फ्रंट ऑफ द सेंक्टम। ऑडियंस के लिए ये बनाया जाता था मंडपा, एंड यहाँ पे ऑडियंस बैठती थी फॉर फंक्शंस विच वर ऑर्गेनाइज्ड बाय टेम्पल्स एंड ऑल्सो परफॉर्मेंसेस टू सी द परफॉर्मेंसेस ऑफ द देवदासीज। पैसेज अराउंड द टेम्पल्स, पैसेजेस अराउंड द सेंक्टम was also made for devotees to go around with images of many gods in this particular passage। Entire structure was enclosed with huge walls which had lofty gates called as gopurams। Over the period of time temples became mini cities। over the period of time जो है temples mini cities बन गए, and in those mini cities priests and others associated with temples will reside। Temple will get rent-free land to meet their expenses. Also, they received grants. They used money for the purpose of improving cultivation, digging tanks, wells, and also for conducting business activities। Earliest temples of द्रविड़ा स्टाइल जो है वो कैलाशनाथ टेम्पल है कुंचीपुरम का कैलाशनाथ टेम्पल ऑफ कुंचीपुरम। And the best example of Dravida temple is Brideshwara temple which is also called as Rajaraja temple, and वो located कहाँ पे है? तंजौर में located है। Temples of Chola had the images of kings and queens in the courtyard, ठीक है, courtyard में kings और queens की images हमें दिखती है।
with the fall of Chola dynasty, what we see is temple building activities going into the hands of Chalukyas of Kalyani and Hoysalas. चालुक्यास ऑफ कल्याणी एंड होयसाला. होयसाला जो थी उनकी जो कैपिटल थी उसका नाम था हेलिबेड एंड इट हैड लार्ज नंबर ऑफ टेम्पल्स इंक्लूडिंग होयसालेश्वर टेम्पल. द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ चालुक्य स्टाइल ऑफ टेम्पल apart from images of the god, it also had the attendees of the gods, that is Yashkas and Yakshinis. The wall of the temple also showcased persona of life, dance, music, scenes of war and peace. So what it got life, social life of a particular individual, social life of people close to religion. तो temples पे रोज़मर्रा के descriptions दिए जाते थे, temple wall पे रोज़मर्रा के descriptions के images बनाए जाते थे. This particular era is also known for the coming up of a giant statue at सरवना बेलगोला. आई एम सो सॉरी प्रोनाउंसिएशन गलत करने के लिए, थोड़ा सा टायर्ड हो गया. सरवना बेगुला में एक बहुत ही जाइंट स्ट्रक्चर आया, बहुत ही जॉइंट स्टैचू आया एंड द नेम ऑफ दैट स्टैचू वॉज ऑफ गोमतेश्वरा. इसी वक्त में ये हुआ. दूसरा चीज़ जो इसी वक्त इंडियन कल्चर और इंडियन आर्ट के लिए इम्पोर्टेंट हुआ एंड दैट वाज कमिंग ऑफ द स्टैचू ऑफ नटराजा तो जो था वो नटराजा का जो स्टैचू जो था डांसिंग शिवा का बहुत पॉपुलर हुआ. स्पेशली द स्टैचू मेड आउट ऑफ ब्रॉन्ज वॉज एंड इज कंसिडर्ड टू बी मास्टरपीस. संस्कृत डेवलप्ड दिस ड्यूरिंग दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बट अदर इंडियन लैंग्वेजेस ऑल्सो स्टार्टेड डेवलपिंग. संस्कृत के डेवलपमेंट में भक्ति मूवमेंट का संस्कृत के और दूसरे लैंग्वेजेस के भी डेवलपमेंट में भक्ति मूवमेंट का बहुत बड़ा हाथ है, खास करके द लैंग्वेज तमिल एंड कन्नड़ा. तो तमिल लैंग्वेज के डेवलपमेंट में दो भक्ति ग्रुप्स का बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है. फर्स्ट इज नैनार्स एंड सेकेंड इज अलवार्स. नैनार्स जो थे वो शिवा डिवोटीज थे एंड अलवार्स जो थे वो विष्णु डिवोटीज थे. बोथ ऑफ देम कंपोज देयर वर्क्स इन तमिल. शेविएट संतों ने एक कलेक्शन ऑफ प्रेयर्स लिखा, कलेक्शन ऑफ राइटिंग्स था उनका, जिनको बोला जाता है तिरुमुराई जो है इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द फिफ्थ वेदा. याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है. इट इज़ ऑल्सो द एज ऑफ कंबन जो है सेकेंड हाफ ऑफ 11th सेंचुरी से अर्ली 12th सेंचुरी में रहे थे एंड हिज एज इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी द गोल्डन एज ऑफ तमिल लिटरेचर. Kamban's Ramayana is considered to be the classic of Tamil language. It is considered to be the classic of Tamil language. Kamban was the attendee, or he was part of the court of Chola kings. दूसरा लैंग्वेज जो मैंने आपको पहले ही बोला, दैट वाज कन्नड़ा लैंग्वेज. कन्नड़ा बिकेम अ लिटरेरी लैंग्वेज. कन्नड़ा वाज द कोर्ट लैंग्वेज ऑफ राष्ट्रकूटास. इट वाज द कोर्ट लैंग्वेज ऑफ चालुक्यास. इट वाज आल्सो कोर्ट लैंग्वेज ऑफ होयसाला. होयसाला का और एक कोर्ट लैंग्वेज था एक्चुअली, इट वाज तेलुगु. तो तेलुगु और कन्नड़ा दोनों भी होयसालास का कोर्ट लैंग्वेज था. कन्नड़ा का डेवलपमेंट में जैन साधुज ऑल्सो प्लेड अ रोल. जैन मॉन्क्स ऑल्सो प्लेड अ रोल. तीन चीज़ों को माना जाता है जेम्स ऑफ कन्नड़ा पोएट्री, पंपा, पोना एंड राणा. ठीक है, नॉट चीज़ें, ठीक है, गलती से उनमें निकल गया. तो 3 जेम्स ऑफ कन्नड़ा पोएट्री आर पंपा, पोना एंड राणा. तो ये याद रखना. विथ रिस्पेक्ट टू तेलुगु एक छोटा सा फैक्ट, रिमेंबर दिस छोटा सा फैक्ट, एंड दैट इज नानिया. NANNIAH. Naniya was considered to be a very important writer in Telugu language and he was in the court of Chalukya kings. Alright. Mahabharat in Telugu language was completed by a person called Tikana. ये भी याद रखना. In Telugu language Mahabharat was completed by a person called as Tikana. So what we will do from here, इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग लेंगे, वी विल लुक इनटू दिल्ली सल्तनत. ठीक है. सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ दिस पीरियड ना हम लोग ये बाद में कर लेंगे. ठीक है. तो सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ ओवरऑल इवॉल्व कैसे हुई ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इन मिडिवल इंडिया, वो हम लोग पूरा जो है वो बाद में कर लेंगे. नाउ लेट अस कॉन्सेंट्रेट ऑन पॉलिटिकल हिस्ट्री पे जाके हम लोग
थोड़ी देर में या फिर इन द नेक्स्ट वीडियो व्हाट वी विल डू इज वी विल गो थ्रू दिल्ली सल्तनत का फाउंडेशन कैसे गिरा इंडिया में. ओके, आई होप दिस पर्टिकुलर वीडियो वॉज अंडरस्टूड बाय यू ऑल. थैंक्स फॉर वॉचिंग इट. बाय एंड बेस्ट ऑफ लक.